عشق و ایمان کے زیور سے سجا رکھا ہے، عشق و ایمان کے زیور سے سجا رکھا ہے، عشق و ایمان کے زیور سے سجا رکھا ہے، دل کو سرکار کا دیوانہ بنا رکھا ہے، دل کو سرکار کا دیوانہ بنا رکھا ہے، عشق و ایمان کے زیور سے سجا رکھا ہے۔ اور حضرت اللہ مولانا تنویر احمد صاحب قبلہ جیسا عاشق رسول کیا کہتا ہے، سماعت فرمائیں۔ 100 دواؤں میں فقط ایک دوا کافی ہے، 100 دواؤں میں فقط ایک دوا کافی ہے، 100 دواؤں میں فقط ایک دوا کافی ہے، یاد محبوب جو سینے سے لگا رکھا ہے، یاد محبوب جو سینے سے لگا رکھا ہے۔ اور سید ریاض الدین صاحب قبلہ آل رسول اس کے دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے ان کے حوالے سے میں یہ شعر آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ دل کو سرکار کے جلووں سے بنا لے طیبہ، دل کو سرکار کے جلووں سے بنا لے طیبہ، دل کو سرکار کے جلووں سے بنا لے طیبہ، اور فاصلہ یوں تو زمانے نے بڑھا رہا ہے، فاصلہ یوں تو زمانے نے بڑھا رکھا ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں۔ ڈھونڈ پائے نہ جہنم میں فرشتے بھی اسے، ڈھونڈ پائے نہ جہنم کے فرشتے بھی اسے، ڈھونڈ پائے نہ جہنم کے فرشتے بھی اسے، جس کو سرکار نے دامن میں چھپا رکھا ہے۔ پائے نہ جہنم کے فرشتے بھی اسے، ڈھونڈ پائے نہ جہنم کے فرشتے بھی اسے، ڈھونڈ پائے نہ جہنم کے فرشتے بھی اسے، جس کو سرکار نے دامن میں چھپا رکھا ہے، جس کو سرکار نے دامن میں چھپا رکھا ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مستقو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، وہ گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا طبیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سرکار کی بچپن کو بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ کو اس سے یہ پتہ چلے گا
کہ میرے آقا کے تشریف لانے سے پہلے اس ہندوستان کا ماحول کیا تھا، ہندوستان کی تاریخ کیسی تھی، عرب کے لوگ کیسے زندگی گزارتے تھے، یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ رب العزیز میں مختصر میں بتاؤں گا۔ آج سے 1400 سال پہلے کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت بھی اس دنیا میں انسانوں کی کمی نہیں تھی، دنیا کے گوشے گوشے میں ابن آدم پائے جا رہے تھے، کوئی بھی ایسا خطہ اور چپا نہیں تھا کہ جہاں پر یہ انسان آباد نہ ہو۔ یہ انسان اپنے معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے بجائے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش میں مبتلا تھے۔ یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے جب سویرے سویرے اگتے ہوئے سورج کو دیکھتا اور اس کی شعاعوں پر نگاہ ڈالتا تو اپنی پیشانی کو جھکا دیتا، اور جب سورج ڈوب جاتا، رات کی تاریکی میں چاند کی چاندنی پھیلتی تو یہ انسان کہتا اے چاند تو میرا معبود ہے۔ جب یہ سمندر کے کنارے سمندر کی لہروں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ ہرے بھرے رہلہاتے پودوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ بڑے بڑے پہاڑوں کے ٹیلوں پر نگاہ ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ جب یہ آگ کے شعلوں پر نظر ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے۔ عربستان سے لے کر ہندوستان تک کفر و گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے، بلکہ جس ملک میں ہم اور آپ آباد ہے اس ہندوستان میں 32 کروڑ معبودان باطل کی پوجا ہو رہی تھی۔ کنکر پتھر مکھی مچھر پیڑ پودے ہوا فضا ان سب کو معاذ اللہ معبود مانا جا رہا تھا۔ یہ انسان ذہن و فکر اور اعتقاد کی بنیاد پر اتنا گر چکا تھا اور اخلاقی اعتبار سے اتنا گرا ہوا تھا کہ اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی، معاذ اللہ بچیوں کا بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا، لڑکیاں دریا میں ڈالی جا رہی تھی، یہ رواج پایا جا رہا تھا ہندوستان کا۔ اگر جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اس کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس کو اپنے شوہر کی چتا پر یا تو جل بھون کر کے بھسم ہو جانا تھا، یا اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تو اس کو ایک مکان میں قید کر دیا جاتا تھا۔ 6 مہینے تک وہ مکان میں قید رہتی، ضروریات زندگی اس کے لیے وہی پیش کیے جاتے تھے۔ اگر وہ زندہ نکلتی تو اس کے چہرے پر کالی پوت کر اس کو جانور پر بٹھا کر گھمایا جاتا تھا، اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی تھی کہ یہ منحوس تھی، یہ رواج تھا ہندوستان کا۔ اور عربستان کا حال تو یہ تھا کہ وہاں بعض قبیلے میں بچیوں کی پیدائش کو بہت ہی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اگر بچی پیدا ہو جاتی تو باپ ماں کی گود سے بچی کو چھین لیتا اور ایک میدان میں لے جا کر گڑھا کھودتا، بچی کو وہیں سلا دیتا، اپنے قدم کو اس کے گلے پر رکھ کر کے دباتا، بچی چیخ مارتی، اس کی زبان باہر آ جاتی، باپ کی آنکھوں میں آنسو آنکھیں ملاتی، مگر باپ کی آنکھوں میں آنسو آنے کے بجائے خون ٹپکنے لگتے، اس کے ماتھے پر غصے سے پسینہ آ جاتا اور ظالم باپ اپنے ظالم ہاتھوں سے بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے۔ انسان اس بھیانک ماحول میں تھا کہ شرافت و تقدس کے ساتھ جیون بتانے کے لیے سب ترس رہے تھے، دولت ہونے کے باوجود بھی لوگ ناخوشگوار ماحول میں زندگی گزارتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ شراب نوشی کا حال تو یہ تھا کہ لقمہ پر شراب کی عادت پڑی ہوئی تھی، لوگ شراب پی پی کر اپنی ضروریات زندگی میں مبتلا ہوا کرتے تھے، بے شمار برائیاں تھیں، بے حیائیاں بھی پھیلی ہوئی تھیں، اور زنا کرنا معاذ اللہ لوگ اپنے لیے بہادری کا کام سمجھتے تھے۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تو اس کی پرورش کرنے کے بجائے اس کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیا جاتا تھا اور وہ بچہ غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ عورتیں سسکیاں لے رہی تھیں، انہیں سماج میں کوئی جینے کا حق نہیں تھا۔ بچیاں آہیں بھر بھر کے سسکیاں بھر بھر کے اپنی جان کو جان آخرے کی سپرد کر دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا تھا اور نشر فرمایا تھا۔ تعلیم عیسوی کو قریب 500 برس کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر وہ تین معبودوں کے قائل ہو گئے تھے۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا اور ان کی ماں کو خدا کی بیوی کہہ دیا تھا، معاذ اللہ۔ تثلیث کے قائل ہو کر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں انٹرفیئر کر دیا تھا۔ یہ ماحول پایا جا رہا تھا دنیا کا۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزمین پر خاندان قریش میں حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے مبعوث فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سویرے سویرے تشریف لائے تو شنبہ کا دن تھا۔ نبی جب سویرے سویرے تشریف لاتے ہیں تو عقل نے ایک سوال کیا کہ نبی کونین دن کے
मुकम्मल उजाले में क्यों नहीं तशरीफ लाए, या रात के मुकम्मल अंधेरे में क्यों नहीं आए? तो अक्ल ने फौरन जवाब दिया, सुनो, अगर नबी कौनैन दिन के मुकम्मल उजाले में तशरीफ लाते तो दिन चैलेंज कर देता है रात तेरी कोई हकीकत नहीं है। नबी कौनैन हम में तशरीफ लाए हैं, और अगर मेरे सरकार रात के मुकम्मल अंधेरे में तशरीफ लाते तो रात चैलेंज कर देती है दिन तेरी कोई हकीकत नहीं है। नबी आखिर ज़मां मुझ में तशरीफ लाए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में तशरीफ ला रहे हैं कि रात का अंधेरा जाते जाते चेहरे मुस्तफा की जियारत कर ले, और दिन का उजाला आते आते रुखे मुस्तफा की जियारत कर ले। ऐसे माहौल में मेरे सरकार मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए, और जब मेरे सरकार मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो मक्का की गलियां महक रही हैं, मक्का की हवा फिजा महक रही है, मक्का के दरो दीवार महक रहे हैं, मक्का की वादियां महक रही हैं, मक्का की पहाड़ियां महक रही हैं, मक्का की शाहराहें महक रही हैं, हर तरफ भीनी भीनी खुशबू आ रही है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आशिक़ रसूल ने इसी तरफ इशारा किया कि भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, और कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसू, तुम्हारे गेसू। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सवेरे सवेरे मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए। नबी जब मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं तो मक्का के लोग हैरान रह जाते हैं उस सुबह को देखने के बाद। और सरदाराने मक्का जब सवेरे सवेरे सोकर के उठते हैं और हरम शरीफ में आकर के इकट्ठा होते हैं तो आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। कोई कह रहा है कि मेरा मकान महक रहा है, कोई कह रहा है कि मेरे घर पर बूढ़ा बाप था बिना दवा के अच्छा हो गया है, कोई कह रहा है कि मैंने अपने जानवरों का अभी जायजा लिया तो जो जानवर दूध नहीं दे रहे थे उनके थन भी दूध से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि अभी अभी मैंने अपने बाग बागीचों का जायजा लिया तो जो दरख्त सूखे थे वो हरे हो गए और फिर मौसम के उन पर फल लगे दिखाई दे रहे हैं। बड़े अच्छे अंदाज से कहा बेकर बलरामपुरी ने कि आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी, आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी, और बिन मौसम के फल गई बगिया खुलते सज गई तारी, बोले खुलते गई मस्त बयारिया, चदर मानो लुटावेला, चदर मानो लुटावेला। अल्लाह अल्लाह, मक्का की सरजमीन पर मक्का के बागों में भी मौसम के फल लगे दिखाई दे रहे हैं दरख्तों पर। मक्का की शाहराह पर सरदाराने मक्का यही बातचीत कर रहे हैं। इतने में एक सरदार खाने काबा के अंदर से तवाफ करके बाहर आया। उसने पूछा है सरदाराने मक्का ये इज्तिमा कैसा है? तो लोगों ने कहा क्या तुम्हें ये अंदाजा नहीं लग रहा है कि आज देखो तो लोगों के मकान महक रहे हैं, आज देखो तो जानवरों के थन जो खुश्क थे वो दूध से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, आज देखो तो हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। क्या इस बात का अंदाजा तुम्हें नहीं लग रहा है? क्या ये इनकलाब तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है? उसने कहा कि तुम लोगों ने तो यही देखा है, मैंने जो देखा है अगर बताऊंगा तो ताज्जुब करोगे। तो पूछा सरदाराने मक्का ने कि तुमने क्या देखा है? उसने कहा कि अभी अभी मैंने खाने काबा का तवाफ किया, जब मैंने तवाफ मुकम्मल किया और चलने का इरादा किया तो क्या देखता हूँ कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में एक बड़ा हसीन और जमील बच्चा लेकर आ रहे हैं। वो इतना हसीन और जमील बच्चा था, वो इतना खूबसूरत बच्चा था कि मेरा दावा है मक्का की सरजमीन पर किसी खानदान में किसी कबीले में इतना अजीम शान बच्चा पैदा नहीं हुआ। वो इतना खूबसूरत बच्चा था कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब जो उस बच्चे को लेकर आगे बढ़ते रहे, मैं मुड़ मुड़ कर पीछे देखता रहा। जब वो काबा के करीब पहुंचे हैं तो मेरी निगाह न फैसला कर सकी कि अब्दुल मुत्तलिब काबा की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं या काबा उनकी तरफ झुका चला आ रहा है। मेरी निगाहों ने देखा है कि मेहराब काबा झुक गई है जब सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब उस बच्चे को लेकर काबा के करीब पहुंचे हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इसी तरफ इशारा किया कि जिसके सजे देखो मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजे देखो मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे
इतना अजीम शान है, इतना खूबसूरत है। अब सारे सरदारान मक्का काबा की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं और जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे सरकार को अपनी गोद में लेकर खाने काबा का तवाफ करा रहे हैं। नबी मेरे आका को खाने काबा का तवाफ करा के दुआ मांगकर बाहर तशरीफ ला रहे हैं। तब तक सरदारान मक्का पहुंच गए। सरदारान मक्का ने पूछा, ए सरदार कुरैश, हमने सुना है कि आपकी गोद में बड़ा हसीन और जमील बच्चा आया है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, उन्हीं के खानदान से आज सैयद हमारे पास तशरीफ फरमा है, रसूल तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीनन अगर इनका करम हो जाए तो हमारी दुनिया भी संवरती हुई नजर आएगी, आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत अल्लामा मौलाना शाहबान रज़ा साहब मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रबीउल अव्वल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल से है सैयद साहब किबला, इनके चेहरे को देखिए और अपने ईमान में ताबना की और ताज़गी पैदा कीजिए, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अन्नज़रु इला वजहिल आलिम इबादतुन, चेहरे आलिम के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। ये तो खैर आले रसूल है, इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल फ़रक़त फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। आओ जरा देखो, सरदारान मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते हैं और उन लोगों ने कहा कि सरदार कुरैश, हमने सुना है कि आपकी गोद में बड़ा हसीन और जमील बच्चा है, जरा हमको भी तो दिखाओ। जैसे ही आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दादा जान ने अपनी बाहों को फैलाया और सरदारान मक्का की निगाह मेरे आका के चेहरे पर पड़ी तो गोया कि वो आला हजरत अज़ीमुल बरकत की ज़बान में इस तरह बोल पड़े कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक़्श जहां नहीं, और यही भूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, धुआं नहीं, और वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही सरदारान मक्का ने मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे को देखा तो गोया कि वो इस तरह बोल पड़े कि आज तक हमारी निगाहों में आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा, इतना अज़ीमुश्शान बच्चा नहीं देखा। हमारा दावा है कि मक्का की सरजमीन पर किसी खानदान में, किसी कबीले में इतना खूबसूरत बच्चा किसी औरत ने जला नहीं, किसी कबीले में इतना अज़ीमुश्शान बच्चा पैदा नहीं हुआ। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का हाल तो ये है। और मुसलमानों हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तस्लीम से पूछते हैं, जिन्होंने सारे अंबिया किराम रसूलाने इज़ाम को देखा है, जिन्होंने हज़रत आदम को भी देखा है, हज़रत नूह को भी देखा है, हज़रत इब्राहिम को भी देखा है, हज़रत इस्माइल को भी देखा है, हज़रत इसहाक को भी देखा है, हज़रत याकूब को भी देखा है, हज़रत यहया को भी देखा है, हज़रत शीश को भी देखा है, हज़रत ज़करिया को भी देखा है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को भी देखा है, जिन्होंने सारे अव्वलीन व आखिरीन को देखा है। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करते हैं, ऐ रूहुल अमीन, जरा आप बताइए कि आपने मेरे सरकार का सानी कहीं पाया कि नहीं, मेरे सरकार की जैसा किसी को देखा कि नहीं, मेरे सरकार के
में से कहीं पाया कि नहीं? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तस्लीम फरमाते हैं कल्लमतुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा व ला अरा मिस्ला मुहम्मदिन। मैंने रूए जमीन के चप्पे चप्पे को छान डाला है, मैंने रूए जमीन के हर खित्ते को देख लिया है, लेकिन मोहम्मद की तरह किसी को नहीं पाया, मोहम्मद के जैसा किसी को नहीं देखा, मोहम्मद का सानी किसी को नहीं देखा। इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीम बरकत फरमाते हैं यही बोल सिदरा वाले जब मैंने जहां के थाले सब मैंने छाने डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक में यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, हजरत अल्लामा मौलाना शाहबाद रजा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल को देखने के बाद कह पड़े हज़रत जिब्रील कि मैंने सरकार के जैसा किसी को नहीं देखा, पूरी रूए जमीन को मैंने छान लिया, मगर मेरे आका की तरह किसी को नहीं पाया। आला हजरत आशिक़ रसूल वो कब चूकने वाले थे, उन्होंने फौरन इस नक्शे को खींच दिया। यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जहां के थाले, और सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह अल्लाह। सरदाराने मक्का ने मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत की और सारे लोग नबी की तारीफ करते हुए अपने घरों को वापस चले जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। नबी के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे आका को अपनी गोद में लेते हैं और हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आगोश में पेश कर देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में सरकार को गोद में लेकर बैठी हुई प्यार कर रही है, कभी पेशानी अक़दस का बोसा ले रही है और मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्यार कर रही है। हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत आमिना खातून के पास जो औरतें मौजूद थी उनका बयान सुनिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब विलादत बसादत हुई तो औरतों ने कहा कि ये आमिना बहन मुबारक हो, तुम्हारी गोद में जो बच्चा आया है ये तो खतना शुदा पैदा हुए हैं, इनकी खतना की जरूरत ही नहीं है। औरतों ने कहा कि ये आमिना बहन मुबारक हो, तुम्हारी गोद में जो बच्चा आया है ये तो नाफ बरीदा पैदा हुए हैं, इनके नाफ के काटने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना खातून रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि वलदतहु नज़ीफन वला क़दर अलैहि। हजरत आमिना फरमाती है कि मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब जना तो सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम पर किसी किस्म की कोई आलूदगी नहीं थी। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर आलूदगी से पाक और साफ पैदा हुए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बचपन में मेरे नबी के मौजज़ात को मुलाहिज़ा फरमाइए। सरकार अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की माँ नबी की माँ इरशाद फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई तो एक ऐसी रोशनी जाहिर हुई कि उस रोशनी में मैंने मशरिक में ईरान की चरागाहों में जो ऊंट चल रहे थे और उनकी गर्दनों में जो कलादे पड़े हुए थे वो सब देख लिया। नबी की माँ इरशाद फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई तो एक ऐसी रोशनी जाहिर हुई कि उस रोशनी में ईरान की चरागाहों में जो ऊंट चल रहे थे वो सब मैंने देख लिया और उसी रोशनी में मैंने मशरिक और मगरिब को भी मुलाहिज़ा फरमा लिया। नबी की माँ इरशाद फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत हुई तो कोई गैब से आवाज दे रहा था, ए इमामुल अंबिया की माँ तुम्हें मुबारक हो, जो तुम्हारी गोद में जा रहे हैं इनका नाम आसमान पर अहमद है, जमीन पर मोहम्मद है। नबी की माँ इरशाद फरमाती है कि जब मेरे बच्चे की विलादत बसादत हुई तो मेरे बेटे की पेशानी जमीन पर लगी और उनकी एक उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और मेरे बच्चे ने 3 मरतबा कहा। पहली बार कहा अल्लाहु अकबर, दूसरी मरतबा कहा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा और तीसरी बार मेरे बच्चे ने कहा अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کو پیدا ہوتے ہی یاد فرمایا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کونین کی محبت میں دیوانگی پن کا اختیار آپ حال کیے ہوئے ہے کہ نہیں؟ نبی کی محبت میں دیوانگی پن کا دیوانگی پر اختیار کیے ہوئے ہے کہ نہیں؟ آپ کے دل میں نبی کی محبت اگرائیاں لے رہی ہے کہ نہیں؟ آپ نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ نبی پر درود بھیجتے ہیں کہ نہیں؟ نبی پر سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کی محبت میں گھومتے ہیں کہ نہیں؟ آقا سے کتنی الفت آپ رکھتے ہیں؟ نبی سے کتنی انسیت آپ رکھتے ہیں؟ نبی سے کتنی عقیدت آپ کو ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کو پیدا ہوتے ہی یاد فرمایا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پکار اٹھتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، اور یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت با سعادت ہوئی تو جو عورتیں آقا کریم کی والدہ کے پاس موجود تھیں ان کا بیان سنیے، وہ عورتیں بیان دے رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت با سعادت ہوئی تو زمینی طور پہ ایک بات اور پیش کرتا چلوں، نبی کی جب ولادت با سعادت ہوئی تو ایک یہودی نے پوچھا، اے آمینہ بہن یہ تو بتاؤ، اتنی وقت مکہ میں تیل کی بڑی قلت ہے، لیکن بتاؤ ذرا رات بھر تمہارے گھر میں روشنی کیسے رہتی ہے؟ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ سنو، جب سے میرے بیٹے محمد کی ولادت ہوئی ہے تب سے اپنے مکان میں نے چراغ جلایا ہی نہیں ہے، میرے آقا کے نور کی وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو عورتیں نبی کی ماں کے پاس موجود تھیں ان کا بیان سنیے، وہ عورتیں بیان دے رہی ہیں کہ جب محمد کی ولادت ہوئی تو اس وقت ہم حضرت آمینہ کے مکان میں موجود تھی، ہم نے مکان کے صحن میں یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے محمد کی ولادت پر آسمان سے چاند اور ستارے مکان کے صحن پہ گر پڑیں گے، اس طرح سے جھکے چلے آ رہے تھے۔ نبی کی پیدائش پر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور کی وہ روشنی پھیلی ہوئی ہے، مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور کی خیرات بڑھ رہی ہے، مکہ کی سرزمین پر سویرے سویرے نور لٹایا جا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ اس طرح سے لوٹ رہے تھے، نبی کے نور کا صدقہ اس طرح سے لٹایا جا رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا بارا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، میرے سرکار کی نور کا صدقہ کس نے نہیں لیا؟ چاند ستارے نے نور کا صدقہ لیا، سورج نے نور کا صدقہ لیا، نبی کونین مبعوث ہوئے ہیں، سارے مرد سارے عورتیں نبی کی زیارت کے لیے آ رہی ہیں۔ حضرت آمنہ کے گھر ایسی بھیڑ لگ رہی ہے کہ لوگ دیکھنے کے بعد یہی کہہ رہے ہیں کہ آج تک ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اتنا عظیم الشان بچہ نہیں دیکھا۔ سارے لوگ زیارت کر رہے ہیں حضرت آمنہ خاتون کا۔ نہیں حضور، اذان نہیں ہو گئی، ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اذان نہیں ہو گئی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا طبیبنا قلوبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت عرب کا یہ ماحول تھا
کہ باہر سے عورتیں آتی تھیں، مالدار گھروں پر بچوں کو حاصل کرتی اور بچوں کو وہ دودھ پلاتی تھی، ان کی پرورش کرتی تھی. اس پر ان عورتوں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا، اس کی اجرت دی جاتی تھی، جس کو تائی کہتے ہیں ہمارے یہاں. تو اسی نوعیت کے تحت مکہ کی سرزمین سے 12 گھاٹیوں کے اس پار ایک آبادی تھی، قبیلہ سعد کی آبادی. قبیلہ سعد میں سے 10 عورتیں تیار ہوئی کہ چلو مکہ کی سرزمین پر مالدار گھروں پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے، ان کی خدمت کی جائے، انعام و اکرام ملے گا. انہی 10 عورتوں میں سے حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ سے عورتوں نے کہا کہ چلو مکہ کی سرزمین پر. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ دیکھو میں کئی دنوں کی بھوکی ہوں، صرف پانی پر گزارا کر رہی ہوں، میری سواری کا جانور بھی بڑا کمزور ہے. لیکن عورتوں نے بار بار کہا تو حضرت حلیمہ تیار ہو گئی. اب حضرت حلیمہ چل رہی ہیں. حضرت حلیمہ کی ساتھ میں آنے والی عورتیں تو پہلے مکہ میں پہنچ جاتی ہیں، مگر حضرت حلیمہ کی سواری کمزور تھی. کمزوری کی بنیاد پر وہ 7 جگہوں پر رک جاتی ہے. حضرت حلیمہ دیر میں مکہ میں پہنچی. جب وہ مکہ میں پہنچی تو وہ 1-2 گھروں کا جائزہ لیتی ہے، پتہ چلا یہاں بھی کوئی بچہ خالی نہیں ہے. وہ دوسرے گھر کا جائزہ لیتی ہے، پتہ چلا یہاں بھی کوئی بچہ نہیں ہے. حضرت حلیمہ مایوس ہو گئی. تب تک ساتھ میں آنے والی ایک عورت مل گئی. اس نے کہا بہن حلیمہ تمہیں کوئی بچہ ملا کہ نہیں ملا؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے مجھے کوئی بچہ نہیں ملا. تب تک اس عورت نے کہا کہ سامنے جو حویلی دیکھ رہے ہو وہ سردار قریش عبد المطلب کی بڑی حویلی ہے، اس میں ایک مکان ہے، اس میں ایک مکان ہے، اس میں ایک مکان جو مکان ہے اس میں ایک بچہ ہے، وہ یتیم ہے. اس عورت نے تو یہی کہا کہ وہ یتیم ہے، مگر اسے کیا پتا کہ وہ یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں، وہ یتیموں کے غمخوار ہے، وہ یتیموں کے چارہ جو ہیں. اس عورت نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو پتہ بتا دیا. اب حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچتی ہے اور اپنے انداز سے سلام پیش کرتی ہے اور آنے کا مقصد بیان کرتی ہے. تو حضرت حلیمہ کو حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کر دیا. اب حضرت حلیمہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہے اور آنے کا مقصد بیان کرتی ہے. بہن میں اس لیے آئی ہوں، میں نے سنا ہے آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، میں چاہتی ہوں کہ انہیں دودھ پلا کر خدمت انجام دے لوں اور مجھے مناسب اجرت مل جائے. اتنا سننا تھا کہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگتے ہیں، آنکھیں بھر جاتی ہیں آنسوؤں سے. حضرت حلیمہ نے پوچھا بہن رونے کا سبب کیا ہے؟ حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ بہن میرے بچے کی پیدائش سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے اب تمہیں زیادہ اجرت تو نہیں مل سکے گی. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ بہن آمنہ میں نے آپ کے بچے کی بڑی تعریفیں سن لی ہے، اب مجھے اجرت اور انعام کی لالچ نہیں رہ گئی ہے. مجھے یہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے شہزادے کی خدمت میں کر لوں، ان کی خدمت انجام دے لوں. اچھا یہ تو بتاؤ کہ شہزادے گرامی وقار ہے کہاں؟ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ایک سفید چادر ڈال دی گئی تھی. حضرت حلیمہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے. جیسے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میرے آقا کے چہرے انور سے چادر کو ہٹایا، خدا کی قسم چادر کا ہٹنا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنکھیں کھول دیتے ہیں اور میرے آقا کے لب پر مسکراہٹ کھیل جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیں، دنیا میں کوئی بھی بچہ ہو جب وہ سوتا ہے اور سو کر اٹھتا ہے تو وہ روتا ہے، وہ روتے ہوئے اٹھتا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی کون، نبی آخر الزمان، محبوب رب العالمین، جب آپ نیند سے بیدار ہو رہے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے جیسے میں نے چادر کو ہٹایا، چادر کا ہٹنا تھا کہ محمد کے لب پر مسکراہٹ کھیل جاتی ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگتے ہیں. اگر سوتا ہوا بچہ مسکرانے لگے تو کتنا خوبصورت لگتا ہے. یہ تو کائنات کے داتا ہے، مسکرا رہے ہیں، مشیر و نذیر ہے، مسکرا رہے ہیں، رحمت للعالمین ہے، مسکرا رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لب پر مسکراہٹ کھیل جاتی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی طرف اشارہ کیا کہ پتلی پتلی گلے قدسے کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدسے کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام
लाखों सलाम अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर बैठ जाती हैं और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दूध पिलाना शुरू करती हैं। हजरत हलीमा ने मेरे सरकार को दाहिना पिस्तान पेश किया, मेरे सरकार ने दूध पी लिया। बाएं पिस्तान को पेश किया, सरकार ने दूध पीना छोड़ दिया। फिर दाहिने पिस्तान को पेश किया, मेरे सरकार ने पीना छोड़ दिया। फिर बाएं पिस्तान को पेश किया, मेरे सरकार ने छोड़ दिया। सरकार ने सिर्फ दाहिने पिस्तान का दूध पिया, बाएं का नहीं पिया। हजरत हलीमा की अब समझ में बात आ गई। उस वक्त हजरत हलीमा दो शहजादों को दूध पिला रही थी। एक तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पिला रही थी, दूसरे उनके शहजादे हजरत अब्दुल्ला थे, उनको पिला रही थी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूध नहीं पिया, सिर्फ दाहिने पिस्तान का पिया। आका करीम ने यहीं से ये एक फित्री इंसाफ पेश किया है और ये ज़हनो फिक्र दे दिया है कि मुसलमानों, जिसको कुर्बत हो, कुर्बत वालों को किस तरह से हक अदा किया करे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दाहिने पिस्तान का दूध पिया और वो भी तिब्बी नुक्ता नजर से माँ के दाहिने पिस्तान में दूध कम होता है और बाएं में ज्यादा होता है। जिसमें दूध कम है उसको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसमें दूध कम है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसमें दूध ज्यादा है उसको नबी कौनैन दूसरे के पीने के लिए छोड़ रहे हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इसी तरफ निशानदेही फरमाते हैं कि भाइयों के लिए तरके पिस्ता करें और दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा गोद में लेकर बैठी हुई नबी की माँ से बातें कर रही हैं। नबी की माँ इरशाद फरमाती है, हलीमा सुनो, मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। जब मेरे बच्चे की विलादत हुई और इनके दादा जान इनको काबा के करीब लेकर गए हैं तो काबा मेरे बच्चे के इस्तकबाल में झुक गया है। ये हलीमा मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। मेरे बच्चे की जब विलादत हुई है तो बादल का एक टुकड़ा आया और थोड़ी देर के बाद मेरा बच्चा मेरी गोद से गायब हो गया और बादल का टुकड़ा भी चला गया और आवाज आ रही थी कि इमामुल अंबिया इन्हें मशरिक व मगरिब की सैर करा दो, इन्हें सारे आलम को दिखा दो। ए हलीमा मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह से नहीं है। मेरे बच्चे की जब विलादत हुई है तो मेरे मकान के शहर में आसमान से चांद और सितारे झुके चले आ रहे थे। नबी की माँ इरशाद फरमाती चली जा रही है, हजरत हलीमा की मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। हजरत हलीमा ने अर्ज किया, बहन अब हमारे साथ में आने वाली औरतें जाने की तैयारियां कर रही हैं, हमें भी जाने की इजाजत दो। हजरत हलीमा सादिया से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ हजरत आमिना खातून अपने लख्ते जिगर मेरे सरकार को गोद में लेती है, प्यार करती है और भीगी पलकों के छांव में हजरत हलीमा को सौंप दिया। अब हजरत हलीमा सादिया मेरे सरकार को लेकर के चल रही है। हजरत हलीमा सादिया 12 पहाड़ियों से गुजर कर अपने आबादी के करीब पहुंच रही है, मगर उन 12 पहाड़ियों का नक्शा भी मुलाजा फरमाते चलिए। हजरत हलीमा सादिया जिस पहाड़ी से भी गुजर रही है, अगर उस पहाड़ के ऊपर कोई सूखा दरख्त है तो हरा हो जाता है। अगर उन पहाड़ियों के दरमियान झाड़ियों में जानवर चल चुक रहे हैं तो सामने से हट जाया करते थे और हलीमा की सवारी को देखा करते थे। कोई कि जानवर भी समझ रहे हैं कि नबी कौनैन जा रहे हैं, इनकी जियारत कर लो, नबी आखिरुज़्ज़मा जा रहे हैं, इनकी जियारत कर लो। हजरत हलीमा सादिया मेरे सरकार को लेकर जब अपनी आबादी में पहुंची है तो उनकी पूरी आबादी महकने लगी है। पूरी आबादी कैद साली का शिकार हो गई थी, मगर बारिश हो जाती है और आबादी पानी से सैराब हो जाती है। तमाम दरख्त लहलहाने लगते हैं, तमाम दरख्तों पर फल आ जाते हैं। हजरत हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि जानवरों का दूध निकालो, तो सारे जानवरों के थन दूध से खुश्क हो गए थे। मगर अब हजरत हलीमा के शौहर क्या देखते हैं कि सारे जानवरों के थन दूध से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। हजरत हलीमा के शौहर जब दूध निकालना शुरू करते हैं तो उनके घर का सारा बर्तन दूध से भर जाता है। हजरत हलीमा से पूछा औरतों ने कि ए बहन हलीमा तेरे जानवर इतना दूध कैसे दे रहे हैं? तो हजरत हलीमा फरमाती है कि मेरे ही नहीं बल्कि आबादी के सारे जानवरों को देखो, अब लोग देख रहे हैं तो सारे जानवरों के थन दूध से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत हलीमा कहती है कि सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के आने की बरकत है। औरतें मुबारकबाद पेश कर रही है कि ए बहन आमिना, ए बहन हलीमा, वाकई ये इन्हीं के आने की बरकत है। इन जैसा हसीन और जमील हमारी निगाहों ने आज तक नहीं देखा। इन्हीं की आने की वजह से बारिश हुई है, इन्हीं की आने की वजह से हमारी आबादी महक रही है, इन्हीं के आने की वजह से जानवरों के थन जो खुश्क दूध से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो ये है मुसलमानों कि
औरतें आका करीम के पास अपने बच्चों को लेकर आती है और कहती कि ये हलीमा तू जो मेरे साथ बरकत वाला बच्चा लेकर आई है, इनका हाथ मेरे बच्चों के सर पर रख दो। तो हजरत हलीमा मेरे आका के दस्तूर नबुव्वत को बच्चों के सर पर रख दिया करते थे। सरकार के पास जो बच्चा लाया जाता वो कभी नजर बद का शिकार नहीं होता था। सारे बच्चों की बीमारियां खत्म हो गई। औरतें प्याले में पानी भर भर कर लेकर आती और कहती कि ये हलीमा तू जो बरकत वाला बच्चा लेकर आई है उनका हाथ इस बर्तन में डाल दे। मैं हलीमा सादिया मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते नबुव्वत उस प्याले में डाल दिया करती थी। अब वो प्याले को लेकर जाते, जानवरों को पिलाते तो जानवरों के दूध ज्यादा हो जाया करते थे, बीमारों पर छिड़कते तो बीमार अच्छे हो जाया करते थे। हजरत हलीमा इस तरह से आज लोग परेशान हो गई। प्याले में भर भर कर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। हजरत हलीमा ने सोचा इस तरह से मैं भीड़ पर काबू न पा सकूंगी। सैयदना हजरत हलीमा सादिया अपने मकान के सामने दरवाजे के सामने एक हौज खोद देती है और उस हौज को प्याले से पानी से भर देती है और फिर पूरी आबादी में ऐलान कर देती है कि अब जिसको मोहम्मद के पांव का धोबल लेकर जाना हो वो इसी हौज से लेकर जाया करे। आला हज़रत अज़ीम बरकत ने इसी तरफ इशारा किया कि जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, गौस कदमत, नारे रबीउल अव्वल, हज़रत अल्लामा मौलाना शाबान अली साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ है, सरकार के शिरखारी का जमाना है। अभी मेरे आका के दूध पीने का जमाना है और सरकार की इतनी बरकत है और इतने मुर्जात जाहिर है। सरकार के कदम शरीफ नबी के पांव का धोवन पिया जा रहा है और बीमार शिफा पा रहे हैं। जानवरों पर छिड़का जा रहा है तो जानवरों के दूध ज्यादा हो जा रहे हैं। इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले साद में जाने से पहले वहाँ के जानवरों को बड़े बड़े शेर चीते उठा ले जाया करते थे, मगर आज की तारीख से कोई जानवर किसी जानवर को नहीं सता रहा है, बल्कि देखा यह जा रहा है कि शेर और बकरी एक दरख्त के नीचे पाए जा रहे हैं। न तो बकरी शेर के खौफ से भाग रही है, न तो शेर बकरी पर हमला कर रहा है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत मुलाहज़ा करते चलिए। हज़रत हलीमा सादिया बयान करती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मानी बढ़ने का हाल ये था कि और बच्चे जितना साल में बढ़ते हैं वो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने में इतना बढ़ते थे। हज़रत हलीमा बयान करती है कि जब तक मैं मोहम्मद को जी भर के देख नहीं लेती थी कसम खुदा की मुझको सुकून नहीं मिलता था। हज़रत हलीमा फरमाती है कि जिस तरह से और बच्चों की खिदमत पर माओ को तकलीफ होती है, मुझे इस तरह बच्चों की अब मोहम्मद की खिदमत पर किसी किस्म की भी कोई तकलीफ का एहसास नहीं हुआ। हज़रत हलीमा बयान करती है कि एक मर्तबा रात की तारीकी थी, चाँद की चादरी फैली हुई थी, मैंने मोहम्मद को दूध पिला दिया और सुला दिया। उसके बाद सोचा कि लाओ जरा देख लो कि मोहम्मद सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। आज भी माओ की आदत होती है कि जब बच्चों को दूध पिला देती है तो देख लेती है कि मेरा बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है। अगर बच्चा सो रहा होता है तो माँ मुतमईन हो जाती है और अगर बच्चा जागता होता है तो माँ थपकियां दे देकर बच्चों को सुलाने की कोशिश करती है। ठीक इसी तरह हज़रत हलीमा सादिया ने मेरे सरकार को दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद सुला दिया। अब सोचा कि लाओ जरा देख लो कि मोहम्मद सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। अब जब हज़रत हलीमा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचती है तो क्या देखते हैं कि मेरे आका की एक उंगली आसमान की तरफ उठी हुई है और नबी अपनी उंगली को आसमान में कभी पायती की जानिब घुमा रहे हैं, कभी दाहिनी जानिब घुमा रहे हैं, कभी सरहानी की जानिब घुमा रहे हैं, कभी बाईं जानिब घुमा रहे हैं। हज़रत हलीमा बयान करती है कि जब मैंने गौर किया तो देखा मोहम्मद की उंगली आसमान में जिधर जिधर घूम रही थी, चाँद उसी तरह घूमता हुआ
चला जा रहा था। अगर मोहम्मद अपनी उंगली को पार्टी की जानिब ले जा रहे हैं तो चांद पार्टी की जानिब जा रहा है। अगर सरहारी की जानिब ले जा रहे हैं तो चांद सरहारी की जानिब जा रहा है। अगर दाहिनी जानिब ले जा रहे हैं तो चांद दाहिनी जानिब जा रहा है। अगर बाईं जानिब ले जा रहे हैं तो चांद बाईं जानिब जा रहा है। गर्ज की मोहम्मद की उंगली आसमान में जिधर जिधर घूम रही थी चांद उसी तरह घूमता हुआ चला जा रहा था। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इसी तरफ इशारा किया कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 2 बरस की हो गई है। मेरे सरकार ने दूध पीना छोड़ दिया है। हजरत हलीमा सादिया मेरे सरकार को लेकर मक्का मुकरमा में उनकी वालिदा हजरत आमिना खातून के पास पहुंच जाती है। नबी की मां के पास पहुंचकर अर्ज करती है कि ऐ बहन आमिना, मुझको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद दिन और रहने दो, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा इनसे मोहब्बत करते हैं, इनकी बरकतें बहुत ज्यादा हैं। चुनांचे हजरत आमिना खातून ने इजाजत दे दी। अब हजरत हलीमा सादिया मेरे सरकार को लेकर के चली है और अपनी आबादी में पहुंच रही है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस्मानी हालत पर ऐसे माहौल में पहुंच गए हैं कि मेरे सरकार अब कदम शरीफ पर जिस्म पर तशरीफ फरमा होकर के चल रहे हैं, मगर कदम में कोई लर्जिश नहीं है, कोई लर्जा नहीं है, कोई लड़खड़ाहट नहीं है। लोग देखने के बाद ताज्जुब करते और कहते कि ये हलीमा जरा तू उस बच्चे की को देखो जिसकी तूने खिदमत की है, जरा उस बच्चे का चलना तो देखो। और बच्चे जब चलते हैं तो दोनों पांव के बल घिसटते हुए चलते हैं, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी दोनों पांव के बल घिसटते हुए नहीं चले, बल्कि मेरे सरकार मुकम्मल सीधे अंदाज से खड़े होकर के चल रहे हैं। कदम में कोई लग़ज़िश नहीं है, कोई लर्जा नहीं है, बल्कि अक्ल आवाज दे रही है कि हमको बनना है निशाने राह मंजिल। दोस्तों, हम अगर भटके तो कितने कारवां हो जाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखिए, नबी की चाल और रफ्तार देखकर लोग अश कर रहे हैं और ताज्जुब कर रहे हैं कि कितना बेहतरीन मोहम्मद की चाल है, कितने अच्छे अंदाज से मोहम्मद चलते हैं। मेरे सरकार की चाल का जवाब नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया के घर तशरीफ फरमा है। एक मर्तबा मेरे सरकार ने पूछा कि अम्मी जान ये तो बताओ मेरे बाकी भाई और बहन कहाँ जाया करते हैं सुबह को। हज़रत हलीमा ने कहा कि ये जंगल में बकरियों को चराने के लिए जाया करते हैं। मेरे सरकार ने फरमाया कि अम्मी मैं भी चाहता हूँ बकरियों को चराने के लिए जाऊँ। हज़रत हलीमा कहती हैं बेटा मोहम्मद मैं तुम्हें इजाजत तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कोई रोक नहीं है। शाम को जब हज़रत अब्दुल्ला आए तो हज़रत हलीमा कहती हैं कि बेटा अब्दुल्ला कल जब तुम सुबह को बकरियों को चराने के लिए जाना तो अपने साथ हिजाज़ी भाई मोहम्मद को भी लेते जाना। अब जब सुबह हुई और हज़रत हलीमा के लड़के अब्दुल्ला ने बकरियों को खोल कर घरे से निकाला तो सारी बकरियां चली आ रही हैं। और अब जब मेरे आका भी तशरीफ फरमा हो गए, हजरत अब्दुल्ला ने बकरियों को अब जब हाँकना शुरू किया तो बकरियां चल ही नहीं रही हैं। हजरत अब्दुल्ला फिर हाँक रहे हैं, बकरियां नहीं चल रही हैं। हजरत अब्दुल्ला हैरान हो गए। उन्होंने अपनी वालिदा हजरत हलीमा को बुलाया। हलीमा आती है, तब तक हजरत हलीमा आने के बाद देखती है और देखने के बाद कहा ए बेटा अब्दुल्ला ये बकरियां मोहम्मद के आगे आगे नहीं चलेंगी, तुम मोहम्मद को लेकर आगे चले जाओ, फिर ये बकरियां मोहम्मद के पीछे पीछे चलेंगी। मैं अर्ज करना चाहता हूँ मुसलमानों, ये जानवर है जो नबी को पहचान रहे हैं, ये इनके आगे आगे ना चलो। ये कैसे जानवर हैं जो नबी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नबी को पहचानता कौन नहीं है। नबी को शत्रु हजर पहचान रहे हैं, नबी को बहरोकर पहचान रहे हैं, नबी को जमीन पहचान रही है, नबी को आसमान पहचान रहा है, नबी को चांद पहचान रहा है, नबी को सूरज पहचान रहा है, नबी को हवा फिजा पहचान रही है, नबी को नबातात पहचान रहे हैं। सब नबी को पहचान रहे हैं। अगर नबी को कोई नहीं पहचानता तो या तो सरकश जिन है जो नबी को नहीं पहचानता, या तो सरकश इंसान है जो नबी को नहीं पहचानता। वरना मेरे सरकार को पहचानता कौन नहीं है। अब हजरत अब्दुल्ला मेरे आका को लेकर आगे चले गए तो सारी बकरियां पीछे चली जा रही हैं, उनको हाँकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हजरत अब्दुल्ला और मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहाड़ भी पहुंच गए। बकरियां जंगलों में चली गई चरने के लिए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो वाकया देखते हैं हजरत अब्दुल्ला हैरान रह जाते हैं। देखने के बाद हजरत अब्दुल्ला बयान करते हैं कि मैंने देखा कि मोहम्मद अगर सख्त पत्थरों पे कदम रख रहे हैं तो उनके निशाने कदम पत्थरों पे पड़ जाया करते थे, लेकिन अगर रेतीली जमीन पर उनके कदम पड़ रहे हैं तो उसमें कदम के निशान नहीं पड़ते। और यही नहीं बल्कि अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दरख्त के करीब जाते तो वो दरख्त मोहम्मद की तरफ झुक जाया करता था, और अगर उस दरख्त का साया किसी और तरफ होता था तो वो दरख्त का साया उसी तरफ आ जाता जिधर मोहम्मद होते थे। और सारे जानवर
जानवर आते थे और लाइन लगाकर मोहम्मद को सजदा करते थे और दरख्तों से पहाड़ों से ये आवाज आती थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला जब शाम हुई और घर आए तो अपनी वालिदा को सारा वाकया बयान कर दिया। हजरत हलीमा सादिया कहती है बेटा मोहम्मद की बेटा अब्दुल्ला किसी से कहना नहीं, मोहम्मद से इस तरह से बहुत सी बातें देखने को मिली है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आखिरी बात कह के मैं रुखसत चाहूंगा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा मौसमी बुखार हो गया। मेरे सरकार 3 रोज जंगल में नहीं गए। तो अब हुआ ये कि जब हजरत अब्दुल्ला गए बकरियों को चराने के लिए तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को शेर उठा के लेके चला गया। हजरत अब्दुल्ला दौड़ते भागते चिल्लाते हुए आए और कहा अम्मी आज तो गजब हो गया। कहा क्या? कहा अम्मी जान आज तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है। तब तक हजरत हलीमा रोने लगी, हजारों कतार रो रही है। मेरे आका ने आंखें खोल दी। नबी ने इरशाद फरमाया अम्मी क्या बात है? हजरत हलीमा अर्ज करती है बेटा आज सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी को जंगल का शेर उठा ले गया है। बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि वो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि जब से आप मेरी आबादी में आए थे मेरी ही नहीं बल्कि आबादी के किसी जानवरों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इसमें जरूर कोई राज है। तब तक मेरे सरकार उठकर खड़े हो गए। नबी ने फरमाया कि चलो बताओ किधर से जानवर आया था। अब हजरत अब्दुल्ला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जा रहे हैं और उसी पहाड़ी पर खड़े हो जाते हैं जिधर से शेर आया था और इशारा कर देते हैं कि इसी जंगल की तरफ से आया था शेर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल की तरफ अपने रुख नबूवत को करते हैं और नबी इरशाद फरमाते हैं या अबुल हारिस इतना फरमाना था कि जंगल से सारे चरिंद परिंद चले आ रहे हैं, सारे जानवर चले आ रहे हैं। चलो चलो नबी कौनैन बुला रहे हैं, चलो चलो रहमतुल आलमीन बुला रहे हैं, चलो चलो बशीर नबी नज़ीर बुला रहे हैं, चलो चलो आका करीम बुला रहे हैं। सारे जानवर आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। इतने में एक बूढ़ा शेर निकलता है बकरी का कान लिए हुए और उसने बकरी को झंझोड़ दिया। बकरी दूर गिर गई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों से पूछा कि बताओ जरा तुम लोग मेरे जानवर क्यों उठा ले गए थे? हजरत हलीमा मेरे सरकार का चेहरा देख रही है। हजरत हलीमा कहती है कि मैं तो मोहम्मद की बातें समझ रही थी लेकिन जानवर मोहम्मद से कैसी बातें कर रहे थे मुझे समझ में ना आया। मैंने मोहम्मद का दामन पकड़ा और पूछा बेटा जानवर तुमसे कैसी बातें कर रहे थे? तो हजरत हलीमा फरमाती है माँ मैंने जानवरों से पूछा कि तुम लोगों ने मेरे जानवर मेरी बकरी को क्यों उठा ले गए थे? तुम लोग तो उन जानवरों ने कहा कि आज 3 दिन का अरसा हो गया था आप आए नहीं थे, आपकी जियारत नसीब नहीं हुई थी, इसलिए हमने लोगों ने ये सोचा कि आपकी बकरी को पकड़ लिया जाए, छुड़ाने के लिए आप ही आ जाएंगे और आप ही की जियारत हो जाएगी, इसलिए ये काम किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जानवर है जो नबी की जियारत को तरस रहे हैं, नबी के चेहरे के लिए तेज नबी के चेहरे को देखने के लिए तरस रहे हैं, दीदार मुस्तफा को तरस रहे हैं। अरे यारो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का आलम ही कुछ ऐसा है। अरे खुदा की कसम नबी के चेहरे का हाल तो ये है जिसकी कसम रब याद फरमा रहा है वो इज़ा सजा ए महबूब तुम्हारे रुख रोशन और तुम्हारे जुल्फ़े मुअम्मरी की कसम है। नबी का वो मुक़द्दस चेहरा है जिसकी कसम खुदा ताला याद फरमा रहा है। इसीलिए तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं है कलाम इलाही में शम्सुद दुआ तेरे चेहरे नूरे खुदा की कसम कसम शब तारे में नाज़िल था कि अभी भी तो जुल्फ़े दुआ की कसम